So hello student, this time we are going to do numerical based on electricity from NCERT book. लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड सारे ही फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए. So here are some formulas. आप इन्हें नोट कीजिए. देखिए जितने बार आप फॉर्मूलाज लिखेंगे उतने बार आपको ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी. So without wasting time, let's start NCERT का first question. A piece of wire of resistance R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash. Now let the resistance of old wire be R and the wire is cut into 5 pieces. So resistance will also get distributed because resistance is directly proportional to length. So resistance of piece 1 will be equal to net resistance divided by 5. Now these resistance are connected in parallel. तो क्या हो जाएगा? Rp 1 upon Rp is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and this up to 1 upon R5. So ये हो जाएगा 1 upon R by 5 और पांचों पीस एक जैसे लेंथ के हैं तो सबका रेजिस्टेंस एक जैसा होगा. तो नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा 5 times of 5 upon R. अगर इसको रेसिप्रोकल कर दे तो ये 5 by R हो जाएगा और 5 रेजिस्टेंस है तो 5 into 5 by R. So this is our R dash and equal to 25 by R. So R dash will be equal to R upon 25. So what we have to find? R upon R dash. R resistance is equal to R and R dash is R upon 25. So what we can write? R into 25 by R. R and R cancel 25. 25 ऑप्शन में दिया हुआ है D option. So this will be your answer. Second question. Which of the following term does not represent electrical power in circuit? So अगर हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर हो जाता है, here are the formulas VI, I square R, V square by R. यहां पर आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हैं, वो दिया हुआ है I R square, वही इसका आंसर होगा. Which of the following does not represent electrical power in a circuit? I R square. Third question. An electric bulb is rated 220 volt. V is given 220 volt. सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरी होता है जो भी गिवन डेटा है उसे आप प्रॉपरली नोट कर लें. And the power of the bulb is 100 watt. Now, when it is operated on 110 volt, 110 volt पे ऑपरेट करना है, the power consumed will be. Now in this question, resistance of bulb चेंज नहीं होने वाला. तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब चेंज नहीं होने वाला तो हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? P is equal to V square by R. Now R can be written as V square by P. V square is 220 into 220 upon power is 100. So 0 and 0, 0 and 0 cancel. R is equal to 22 into 22. आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऐसे. नाउ वी हैव टू फाइंड पावर. पावर इज इक्वल टू हियर V square by R. नाउ 110 into 110 upon R. R is 22 into 22. 11 tens are 11 tens are 11 twos are 11 twos are 100 upon 4, that is 25. So
the power consumption will be 25 watt power. Fourth question, two conducting wires of same material and of equal length and equal diameter are first connected in series, then in parallel in an electrical circuit. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be. So, fourth question में यहां पर आपको गिवन है कि लेंथ, डायमीटर, मटेरियल सब चीजें सेम है, आइडेंटिकल है. तो फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस अगर फॉर वायर 1 की बात कर लेते हैं, उसमें है रेजिस्टेंस R. वायर 2 की बात कर लेते हैं तो उसमें भी रेजिस्टेंस होगा R. नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R प्लस R, एंड इन पैरेलल ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, दैट इज इक्वल टू R2 1 अपॉन RP. पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे हम देख सकते हैं 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस. सो RP की वैल्यू क्या हो जाएगी R/2. Now what we have to find? We have to find the ratio of heat produced. So heat produced in series will be equal to, देखिए यहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस के टर्म में ये दो फॉर्मूला है, आप किसी को भी यूज कर सकते हैं. V²T बाई R. अब यहां पे सीरीज का रेजिस्टेंस क्या है 2R, और अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो वो हो जाएगा V²T अपॉन R/2. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हीट इन सीरीज रेशियो विथ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल. सो V²T upon 2R divided by V²T R upon 2. So we will get V²T upon 2R into, 2 V²T and R. R cancel, V²T cancel. So this will be equal to 1:4. So heat produced in series to heat produced in parallel is equal to 1:4. That is C option. फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं. हाउ इज वोल्टमीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. अगर किसी भी सर्किट की बात करें, हम जब वोल्टमीटर को कनेक्ट करना हो तो हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. से फॉर एग्जांपल ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी, तो ये वोल्टमीटर जो होगा पॉजिटिव साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, नेगेटिव साइड नेगेटिव से कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. द कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm. डायमीटर दिया हुआ है 0.5 mm. ओके, सो अगर मुझे मैं जब भी वैल्यूज कैलकुलेट करूंगा वो हमेशा SI यूनिट में होनी चाहिए. यहां पर डायमीटर की अगर हम बात करें तो वो दिया हुआ है मिलीमीटर में. सो मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं मीटर में. 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर में हो जाएगा. 0.5 इंटू 10 to power -3 मीटर. सो व्हाट आई कैन राइट 10 to power -4 meter, and radius will be equal to 2.5 into 10 to power -4 meter. Resistivity is given, rho is equal to 1.6 into 10 to power -8 ohm meter. Now resistivity वाला एक ही फॉर्मूला हम जानते हैं, R is equal to rho L upon A. So मैक्सिमम चांसेस है कि यही फॉर्मूला यहां पर लगेगा. एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 10 ओम. दिस इज रेडियस, मैं रेडियस लिख देता हूं ताकि R और उसमें कंफ्यूजन ना रहे. ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है.
So what we have to find? We have to find what will be the length. Length हमको find out करना है. Yes. So we know that R is equal to rho L upon A. So L can be written as RA upon rho. Now rate first R is resistance 10 into area. Now if this is the वायर के अगर क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर शेप का हो गया. अगर मैं इसके क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये कैसा एरिया है? सर्कुलर एरिया है. तो यहां पर एरिया हम किसका यूज करेंगे? सर्कल का, पाई आर स्क्वायर. एंड रेडियस इज 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, क्योंकि स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 8. 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 8 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा पॉइंट हटा देते हैं, यहां पे 100 लगा देते हैं तो 6.25. नाउ मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 6.25. ये भी 6.25 हो जाएगा. यू विल गेट द वैल्यू ऑफ लेंथ. यहां से आपको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है, यहां पे आपको मीटर में लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी. इसके अलावा और क्या पूछा है? हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड. ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस की तो रो एल अपॉन ए हो गया. यस, सो रो तो एज इट इज रहेगा, लेंथ भी एज इट इज है, रेडियस अभी यहां पे अगर आर है, ठीक है, डायमीटर को डबल करने की बात कर रहा है, तो मैं ले लेता हूं यहां पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर. और जब डबल हो जाएगा मतलब आर डैश हो जाता है, नया न्यू रेजिस्टेंस है अगर, तो वो फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको आर डैश से डिनोट कर देता हूं, रो एल अपॉन पाई. नाउ डायामीटर पहले d था, तब रेडियस r था. ठीक है, अब क्या हो गया? डबल हो गया, तो रेडियस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2r स्क्वायर. दिस इज r डैश. अब अगर अपन को पता करना है कितना चेंजेस आ गया है, लेट अस डिवाइड दीज टू रेजिस्टेंस. रो एल pi r square divided by rho L pi 4r square. This will become pi L, अगर वहां विजिबल, pi L pi r square into pi 4r square on pi L. Pi L cancel, pi r square, 4:1, मतलब 4 टाइम्स इसमें चेंजेस आ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ करंट I flowing in a resistor of corresponding values of potential difference. ओके, तो यहां पे आप ग्राफ बना सकते हैं सिंपली. अगर ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ में जो ग्राफ बनता है वो जनरली स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक है, आप बना सकते हैं. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए V इज इक्वल टू आई आर. मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का एक तरीका बताया था ओम्स लॉ के लिए. V, सो V इज इक्वल टू आई आर. यहां पे आपके पास V की वैल्यू भी है और I की भी वैल्यू है. सिंपली कोई भी वैल्यूज को आप डिवाइड करके देखिए, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी. 6.7 अगर मैं थर्ड वैल्यू की बात करता हूं, डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3.35. ठीक है,
लास्ट वाली अगर वैल्यू की बात करूं तो R इज इक्वल टू 13.2 डिवाइड बाई 4, दैट इज 3.3। तो अप्रोक्सीमेटली अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे वो रेजिस्टेंस कितना होगा, 3.3 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टर, यहां पे रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, अक्रॉस अननोन रेजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। करंट कितना है, I की बात किया है, I इज इक्वल टू 2.5 मिली एम्पियर। नाउ करंट की अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो वो होता है एम्पियर। सो इसको सबसे पहले क्या कर देते हैं, एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। 10⁻³ मिली की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो गया 10⁻³ डिवाइड बाई 1000 एम्पियर। नाउ find the value of resistance of resistor. V is given 12 volt, R find out करने बोलता है, तो V is equal to IR. Now resistance can be written as V upon I. So what is V here, 12, and I is 2.5 into 10⁻³ So this can be transferred and it will become 10⁻³, 12, 2.5, 120 divide by 25, 5 are 5, 24 are, and this will become 4.8. Yes. So this is the value of resistance, 4.8 into 10⁻³ ohms. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप हमेशा गिवन डेटा लिखिए और उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूले को देखिए। जो आपके पास डेटा दिया हुआ है उससे रिलेटेड फॉर्मूला ही लगेगा। ओके, सो थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए जब भी आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर्मूले आपको सारे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज with resistor. Okay, so battery of 9 volt, question number 9, resistance 1 is given 0.2, 0.3, 0.4 and 0.5 and 12 ohm। सब ओम में है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, R2, R3, R4, R5। भाई इस जगह पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रेजिस्टर्स। अगर सीरीज कनेक्शन की हम बात करें तो सीरीज कनेक्शन में थ्रू आउट क्या कांस्टेंट होता है, करंट कांस्टेंट होता है। तो जितना करंट R1 से पास होगा उतना ही R3 से भी पास होगा, उतना ही R5 से भी पास होगा। सो अगर मैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करूं तो रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना हो जाएगा, 0.2, 0.3, 0.5, 0.9, 1.4, 13.4 ohms रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस। और I की अगर मैं बात करूं तो V इज इक्वल टू IR होता है, V अपॉन R। सो 9 अपॉन 13.4, यू विल गेट द वैल्यू। आप इसको डिवाइड कर लीजिए और इससे आपको मिल जाएगा करंट का वैल्यू। यही करंट की वैल्यू 12 ओम रेजिस्टेंस से भी पास होगी। करंट कितना होगा यहां पर, I विल बी इक्वल टू 9 अपॉन या 90 अपॉन 134, गॉट इट, एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, how many 176 resistors in parallel are required to carry 5 ampere on 220? ओके, करंट की वैल्यू दे दिया है 5 एम्पियर्स, वोल्टेज की वैल्यू दे दिया है 220 वोल्ट। सो नेट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है इसमें, भाई V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, 220 डिवाइडेड बाई 5, this is equal to 5 4 and 4 44 ओम। नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए
जो भी कनेक्शन हम पैरेलल में करेंगे उसका नेट रेजिस्टेंस जो होना चाहिए 44 ओम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ क्या बोल रहा है कि आपको कनेक्ट करना है, ये क्वेश्चन नंबर है 10, आपको कनेक्ट करना है 176 ओम के रेजिस्टर्स को, ठीक है, पैरेलल में। तो अगर मैं बात करूं 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू एंड सो ऑन, ये अप टू 1 अपॉन आर एन चलेगा। मेरे को नंबर ऑफ कंडक्टर्स फाइंड आउट करना है, भैया वो मेरे को नहीं पता है, मैं क्या करूंगा 1 अपॉन 176 प्लस 1 अपॉन 176, लेट n कंडक्टर्स बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल to n times. So what we will get, 1 upon Rp is equal to 176 LCM और 1 कितने टाइम्स ऐड हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, तो n अपॉन 176, Rp is equal to 176 by n. Now this resistance should be equal to this, तो 44 is equal to 176 upon n. n is equal to 176 upon 44, 4 टाइम्स। तो ये हो गया आंसर। कितने कनेक्ट करना पड़ेगा भाई, 4, हाउ मेनी रेजिस्टर्स, 4 रेजिस्टर्स। सो वी हैव टू कनेक्ट 4 रेजिस्टर्स इन पैरेलल। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करें, show how you would connect 3 resistors each of resistance 6 ohm so that the combination of resistance, अच्छा, एक 9 ओम हो जाए और एक हो जाए 4 ओम। सो यहां पर बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं हम। बाय ट्रायल एंड एरर सारे रेजिस्टेंस कितने हैं, 6 ओम के। नेट रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिलना चाहिए, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट एक केस में मेरे को मिलना चाहिए 9 ओम और एक केस में मिलना चाहिए 4 ओम। तो यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका यही है, ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। या तो आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसमें सिंपल सर्किट्स बना लीजिए। जैसे ये हो गया, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है सर्किट्स की, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि तीनों पैरेलल में कनेक्ट हो जाए, ठीक है, और या फिर एक सीरीज 2 पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा और क्या पॉसिबिलिटी है, एक सिंपल उसके साथ 2 सीरीज में हो, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो सबका निकाल के देख सकते हैं अपन, और जो बेस्ट होगा जिसमें आंसर आ जाए वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें बात करें 6, 6, 6, ये हो गया 18 ओम, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। 9 और 4 चाहिए हमको। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 3/6, 1/6। अगर इसको सॉल्व करना है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 3/6, 1/2, 2 ओम नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, तो ये भी नहीं चाहिए। इसकी बात करते हैं 6 और ये हो गया 1/6 और 1/6 कितना आ जाएगा, 2/6 यानी 3, 6 प्लस 3, ये वाले केस में आ रहा है 9 ओम, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे 1/6 प्लस 1/6 कितना हो जाएगा, 2/6। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम, 6 ओम ऐड कर दो, 9 ओम हो गया। इसकी बात कर लेते हैं, ये 6 एंड ये 6, तो ऊपर वाला तो 1/6 रहेगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। अगेन इसको सॉल्व कर देते हैं, 12, 2 प्लस 1, 3/12 और ये बन गया 1/4। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ गया 4 ओम। तो हमारा जो रिक्वायर्ड था वो डायग्राम्स ये होंगे, ठीक है।
तो कुछ इस तरीके से आप ये जब सर्किट ड्रॉ करने बोलेगा तो आप इस तरीके का मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड बोलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पॉसिबिलिटीज लग रही है तो आप वो भी ट्राई करके देख सकते हैं। जरूरी नहीं है 9 ओम और 4 ओम पूछे, हो सकता है 18 पूछ ले, 2 पूछ ले या कोई और वैल्यू। ठीक है, ये जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये पार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Several electric bulbs are designed to be used on 220 volt electric supply line and are rated 10 watts. How many lamps? Okay, यहाँ पे अगेन क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो जो गिवन दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले 12th में बोल रहा है V is equal to 220 volt एंड पावर दिया हुआ है 10 वॉट। कितने रेजिस्टर्स, हम रेजिस्टर्स में कहने का मतलब है लैंप्स यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं 220 वोल्ट लाइन के अक्रॉस, ताकि 5 एम्पियर ऑफ करंट पास सके। तो यहां से मेरे को रेजिस्टेंस मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू V अपॉन आई, 220 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 44 ओम। तो जो भी नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट का वो 44 ओम होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, P इज इक्वल टू 10 वॉट। तो यहाँ पावर का हम रेजिस्टेंस के टर्म में क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई आर होता है 220, यहाँ पे लिख देते हैं V स्क्वायर बाई आर, 220 अपॉन P, पावर दिया हुआ है 10, R 0 0 कैंसिल, दिस इज 22 का स्क्वायर होता है 4840 ओम। तो एक लैंप का रेजिस्टेंस हमको यहां पे मिल गया 4840 ओम्स। तो कितने लैंप, एन लैंप की बात कर लेते हैं। 1 अपॉन आरपी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4840 प्लस 1 अपॉन 4840 एंड दिस इज अप टू n टाइम्स। तो ये हो जाएगा n अपॉन 4840 1 अपॉन आरपी। अगर रेजिस्टेंस आरपी की बात करें तो वो कितना होना चाहिए 4840 अपॉन n, और नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए 44। सो यहां पे हम निकाल सकते हैं वैल्यू 4840 डिवाइडेड बाई 44, 44 ones are 44 and 110. So number of lamps that can be used here is 110. Next question. A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance. Okay, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, 13 की बात कर रहे हैं, 13 वोल्ट इज इक्वल टू, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट, has two resistance coil A and B. अच्छा, R A की बात करते हैं वो हो गया 24 ओम, R B की बात करते हैं वो भी हो गया 24 ओम, which may be used separately in series and in parallel. What are the current in three cases? अच्छा, सेपरेटली की बात करें, अलग अलग यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। I की बात करें V अपॉन R, I इज इक्वल टू 220 बाई 24। सीरीज में होगा अगर तो सीरीज में क्या हो जाएगा भाई, सीरीज में 24 प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 48 ओम। ये एम्पियर हो गया, ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। I इज इक्वल टू अगेन V बाई आर, तो ये हो जाएगा 220 बाई 48, अगेन एम्पियर की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। थर्ड पैरेलल है 1 अपॉन 24 प्लस 1 अपॉन 24 पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 24 1 अपॉन 12, 1 अपॉन आरपी, आरपी इज इक्वल टू 12 हो गया भाई, ये कितना हो जाएगा 220 अपॉन 12, ये भी वैल्यू आ जाएगी आपकी करंट की, तीनों केसेस में आ जाएगी। ये सीरीज में होगा, ये सेपरेटली है, ये करंट इन सीरीज और करंट इन पैरेलल की बात कर लेते हैं। ठीक है, आप इनकी वैल्यूज निकाल लीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द पावर यूज्ड इन
2 ohm resistor in each of the following circuit 6 ओके यहां पर पावर कंज्यूम जो हो रहा है अलग अलग केस दिए हुए हैं 14 पहला केस दिया हुआ है उसमें 1 ohm एंड 2 ohm का विथ वोल्टेज 6 वोल्ट सो बेसिकली यहां पे आपको फाइंड आउट क्या करना है फाइंड आउट करना है पावर इन 2 ohm रेजिस्टेंस सो अगर ये सीरीज में है तो हम जानते हैं सीरीज में क्या होगा करंट कांस्टेंट रहेगा तो वी कैन कैलकुलेट द करंट वैल्यू 3 ohm हो गया तो V इज इक्वल टू IR होता है और I की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R वोल्टेज इज 6 एंड रेजिस्टेंस इज 2 एम्पियर इज द करंट वैल्यू सो अगर यहां पावर की बात करें जब वो सीरीज में था तो वो क्या हो जाएगा पावर इन टर्म्स ऑफ करंट I स्क्वायर R होता है I स्क्वायर क्या हो गया भाई 2 स्क्वायर यहां फॉर्मूला लिख लेते हैं I स्क्वायर R नाउ I स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कौन से रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड आउट करना है 2 तो ये हो गया 2 स्क्वायर दैट इज 8 वॉट नाउ सेकेंड केस की अगर हम बात करें तो सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है 4 वोल्ट बैटरी मींस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस इज R1 12 ohm and 2 ohm सो अगर हम पैरेलल केस की बात करें तो पैरेलल केस में क्या होता है जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है करंट चेंज हो जाता है सो यहाँ पे मैं I स्क्वायर R का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता पावर फाइंड आउट करने के लिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा पावर इज इक्वल टू वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में होता है P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R नाउ V स्क्वायर क्या हो गया 4 into 4 and R is 2 4 2s are 8 again 8 watt so सीरीज में भी सेम होगा पावर और पैरेलल की बात करें तो पैरेलल के केस में भी सेम होगा सो हमने कंपेयर कर लिया दोनों ही केस में क्या हो रहा है 8 वॉट आ रहा है मूविंग अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन 2 lamps, one rated 100 watt and 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if supply voltage is 220 volt? 15th है ना? Yes. भाई पैरेलल का कनेक्शन बोला है तो पैरेलल का डायग्राम ही बना लेते हैं ओके ये हो गया इसमें बोल रहा है 220 दोनों पास हो रहे हैं 220 वोल्ट से कंप्लीट हो गया हमारा सर्किट अब क्या बोलता है व्हाट आर द करंट व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 ओके सप्लाई वोल्टेज दे दिया है इसमें से करंट कितना आ रहा है देखो ये पैरेलल कनेक्शन है तो इसमें करंट की वैल्यू कुछ और होगी इसमें करंट की वैल्यू कुछ और होगी तो I इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं I1 प्लस I2 नाउ फर्स्ट केस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू कैसे निकल सकती है बिल्कुल निकल सकती है देखो यहां पर हम पावर के टर्म्स में देख लेते हैं P इज इक्वल टू VI होता है P इज इक्वल टू VI होता है I इज इक्वल टू P बाई V पहला केस यहां पे है 100 वॉट और दूसरा है 60 वॉट कोई दिक्कत नहीं है I1 इज इक्वल टू हो जाएगा 100 बाई 220 और I2 क्या हो जाएगा I2 हो जाएगा 60 बाई 220 नाउ I की अगर वैल्यू निकालना है मैंने बताया यहाँ पे अलग अलग करंट फ्लो करेगा नेट करंट निकालना है I1 प्लस I2 कर देते हैं 100 अपॉन 220 प्लस 60 अपॉन 220 ये कितना हो जाएगा 160 अपॉन 220
और ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं 8/11 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा 0.7 इसकी वैल्यू आनी चाहिए एम्पियर्स में। ठीक है, आप कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू और चाहिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं डेफिनेटली इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूजेस मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी और ओके ठीक है, किसका पावर कंजम्पशन बोल सकते हैं। एनर्जी मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पावर कंजम्पशन जैसी ही बात हो रही है। ठीक है, तो 16 टीवी के लिए बोलता है क्या 250 वॉट पावर 250 वॉट, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.25 किलोवाट। टाइम दिया हुआ है 1 आवर, तो एनर्जी इज इक्वल टू पीटी होता है पी इंटू टी। सो यहां पे क्या हो गया पावर कंजम्पशन 0.25 किलोवाट आवर। और दूसरे केस में क्या बोलता है, टोस्टर है, टोस्टर का क्या हो जाएगा, पावर दिया हुआ है 1200 वॉट और टाइम है, इसको लिख सकते हैं 1.2 किलोवाट। टाइम लिख देते हैं 10 मिनट, 10 मिनट यानी 10/60 1/6 आवर। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू पी इंटू टी 1.2 इंटू 1/6 कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा 12/60 यानी कि 1/5 0.2 किलोवाट आवर। दिख रहा है टीवी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, टीवी पावर ऑफ टीवी इज ग्रेटर देन पावर ऑफ टोस्टर। ठीक है, तो पावर सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कितने देर कंज्यूम किया जा रहा है, कितने देर के लिए ऑपरेट किया जा रहा है, वहां पे भी डिपेंड करता है। लास्ट क्वेश्चन, विच uses more energy, नहीं 17th, an electric heater of resistance 8 ohm, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 8 ohm, draws current of 15 ampere from the service mains 2 hours. An electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed. टाइम दिया हुआ है 2 आवर। तो हीट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, I²RT हो गया। H इज इक्वल टू I², 15 इंटू 15 R इंटू T, 225 इंटू 16 कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल गिव यू द वैल्यू इन जूल्स, और अगर कैलोरीज में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे इसको किससे 4.18, ये हो जाएगी कैलोरीज में। सो ऑन दिस नोट क्वेश्चन नंबर 18 थ्योरेटिकल पार्ट है। यहां पर न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं एनसीईआरटी के, इसके अलावा भी न्यूमेरिकल्स के और पैटर्न अपन देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।